శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रुति स्मृति नदीपूर्णं शास्त्र कल्लोलसंकुलं विष्णुभक्त्युदकं शुद्धं वंदे श्रीविखनोर्नवम्। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीवेङ्कटाचलक्षेत्रे कृष्णाकावेर्योः मध्यप्रदेशे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये पराभवनाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्म ऋतौ आषाढ़मासे कृष्णपक्षे सप्तम्यां शुभतिथौ सौम्यवासरे अश्विनी नक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ मम गोत्रोद्भवस्य नामधेयस्य భక్తులందరూ కూడా మీ గోత్రనామధేయములను స్మరించుకుని స్వామివారికి మీ కోరికలను ప్రార్థనలు వినిపించండి. సహకుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫల సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య ప్రాప్త్యర్థం చ రాజద్వారే రాజముఖే సర్వకార్య ఆనుకూల్యతా సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస కరుణాకటాక్ష వీక్షణామృత పరిపూర్ణతా సిద్ధ్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతః నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమినీలాసమేతస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య ఏతత్ శేషాచల నివాసినః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవం వయం ఆచార్యముఖేన कारयिष्यामहे. सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु. వెంకటేశాయ. వెంకటాచల నిలయం వైకుంఠపురవాసం పంకజనేత్రం పరమ పవిత్రం శంఖ చక్రధర చిన్మయ రూపం అంబుజోద్భవ వినుతం అగణిత గుణనామం తుంబురు నారద గాన వినోలం மகர குண்டலதர மதன கோபாலம் பக்த போஷக ஸ்ரீ புரந்தர விட்டலம் என்று திருமலையானை வெங்கடாச்சலத்தில் உரைபவனே, நித்திய வைகுண்டத்தில் வசிப்பவனே, தாமரை மலர் போன்ற கண்களை உடையவனே, மிக பரிசுத்தமானவனே, கையில் சங்கு மகமயமான வடிவை கொண்டவனே. இதம் பிரம்ம புனீமஹே பிரம்மா புராதோ
ఓం నిరుపమగుణసంధురనిత్యలక్ష్మీ సమేతో నిఖిలనిగమవేద్యో నిస్థులో వెంకటేశః నిజగణ సమర్చాసక్తభక్తో భరక్షీ నివసతు హృదయే మే స్వాంగభక్తం విదన్వన్ శుక్లాం వరధరం విష్ణుం శుభవర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే యస్య వక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రవే శ్రీలక్ష్మీవల్లభారంభాం విఘ్నమయమధ్యమాన్ అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం భగవతో బలేన భగవతో వీర్యేణ భగవతస్తేజసా భగవతః కర్మణా భగవతానుగ్రహేతో భగవతానుధ్యాతో భగవన్ధ్యాత్వా భగవత్కర్మ కరిష్యామి తద్భగవాననుమన్యతాం ఆసనమంత్రస్య పృథివ్యాః మేరుపృష్ఠర్షిः సుతలం ఛन्दः శ్రీకూర్మో దేవతా ఆసనేంద్రయోగः పృథివ్యా ధృతా లోకా దేవత్వం విష్ణునా ధృతా పంచధారగమాన్ దేవి భూత్వం కురుశాసనం అశేషజగదాధారమనంతం కూర్మరూపిణం ఆసనస్య విశుద్ధ్యర్థమాత్మానంతం భజే హరిం హం అనంతాసనాయ నమః యం యోగాసనాయ నమః విమలాసనాయ నమః రం కూర్మాసనాయ నమః ప్రణవస్య పరబ్రహ్మర్షిः దేవీ గాయత్రీ ఛन्दः పరమాత్మా దేవతా ప్రాణాయామే వినియోగः ఓం భూః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియః పదేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటిబ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీభూమిలీలాసమేతస్య ఏతచ్శేషాచలనివాసినः శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः ప్రీత్యర్థం లోకకళ్యాణార్థం శ్రీవైఖానసభగవత్శాస్త్రోక్తమార్గేణ క్రియమాణ వైవాహిక మహోత్సవకర్మణి అస్మిన్ దినే క్రియమాణ అంకురారోపణ బీజావాపన రక్షాబంధన అగ్నిప్రతిష్ఠ మాంగళ్యపూజ ప్రధాన ప్రవేశలాజహోమాది సమస్తకర్మసు స్థండిల పరిధిపురస్తరణాది సర్వోపకరణ ద్రవ్యశుద్ధ్యర్థం వృద్ధ్యర్థం శాంత్యర్థం ఉభ్యుదయార్థం చ సద్భిర్మహాజనై సహ సుపుణ్యాః కర్మ కరిష్యన్ ఆదౌ నిర్విఘ్నేన పరిసమాప్త్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే తదంగకరకారాధనం కరిష్యే ఓం ధారాసు సప్తశమానశేషు సరస్సరిత్సు పరిపౌరితేషు అపోభిబ్రహ్మం ప్రతిపాదయిష్యే గ్రమానుభత్తావింశు చిరవింశు కర్మా యదమాప శివాः శుభనమాः శాంతాः శాంతినమాः శుభాः శుభనమాः పూతాः పూతనమాः పుణ్యాः పుణ్యతమా మేఘ్యా మేఘ్యనమా అమృతా అమృతరసాः పూతా బ్రహ్మపవిత్రేణ పూతాः సూర్యస్య రశ్మిభిः आपो वा इदं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पशुवापोन्नमापोमृतमापः सम्राडापो विराडापस्वराडापश्छन्दागस्यापो जियोजोगुष्यापो युजोगुष्यापः सत्यमापः सर्वा देवतापो भूर्भुवस्वरापवोन् अस्मिन् कर्के ओं एते शतिर्नजे सहस्रं यज्ञयास्ताशावृतताः पुरुत्रा तेभ्यो रजिन्द्रस्य विष्णुर्विश्वे देवामिञ्चन्द्रमरुतस्वस्त्या ओं भूर्णमावाहयामि ओं भुवः प्रचोर्यमावाहयामि ओं स्वः रक्तां वर्धनमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वः यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनम् वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः एते स्नानप्लोतवस्त्रातिरेयाभरण पुष्पगन्धधूपदीपार्घ्याचमन नैवेद्यताम्बूलादि सर्वोपचाराः अस्मिन् कर्म निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहं शङ्खचक्रसमन्वितं जयापतिं शृङ्गकेतुं सुपुष्परथवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् ओमाग्नेयो यस्मात् यजामहे त्वा विश्वे सदात्मं महितो निशम्भो वैराजन्ते सर्वनिधत्तां प्रौषानधेशो विबुधानामनादिः वामे शस्तां धनितां दधातु ओं पद्माकारमण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रवतीमावाहयामि तद्वामे जयामावाहयामि सूत्रवती जयासहित श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनं सूत्रवती जयासहित श्री विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि सूत्रवती जयासहित श्री विश्वक्सेनाय नमः एते स्नानप्लोतवस्त्रोत्तरैयाभरण पुष्पगन्धधूपदीपार्घ्याचमन नैवेद्यताम्बूलादि सर्वोपचाराः विश्वक्सेनस्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मान्नान्यमुपासेत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्ये विज्ञानां प्रथमाप्य च कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य भोजनम् भवद्भिरनुज्ञातः पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाज्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापतिः प्रजतां प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतजः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अविन्दनो यतो विष्णुरुपचक्रमे
पृथिव्याः सप्तधानभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानभिः पदं समूढनस्य पादं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरजः दिवेव चक्षुराततं तद्विप्रासो विपुण्यभोजागृवादं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत् परमं पदं द्रविणोदाद्रविणसस्तरस्य द्रविणोदाः सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरवते विषन्नो द्रविणोदारासते दीर्घनायुः भद्रं कर्णे भूषणयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्युजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनोभिर्युषेम देवहितञ्जदायुः शतमिन्नि शरदो अन्तिदेवायत्रानश्चक्राजरसिन्धनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति नानो नध्यारीर्षदायुर्गन्तोः अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् यत्पुण्यन्नक्षत्रम् तद्भत्कुरुमीतोपव्युषम् यथा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रम् नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र च भुञ्जम् पुष्पेत् तावत् कुर्वोत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ भूः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमिलीलासमेतस्य श्रीमखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य एतत् शेषाचलनिवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि अस्मिन् दिने क्रियमाणसमस्तकुर्मसु स्थण्डिलपरिधिपरिस्तरणादि सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं शान्त्यर्थम् अभ्युदयार्थं च क्रियमाण पुण्याः भगवद्गीजनमनि पुण्याहं भवन्तो ब्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ भूः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि अस्मिन् दिने क्रियमाणसमस्तकर्मसु स्थण्डिलपरिधिपरिस्तरणादि सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं शान्त्यर्थम् अभ्युदयार्थं च क्रियमाण पुण्याः भगवद्गीतनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ते पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ते पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति अर्ध्वास्महव्यैर्नमसोपसद्या मित्रं देवं मित्रभेयन्नो अस्तु अनोराधान हृषा वर्धयन्तः शतञ्जीवेन शरदस्य वीराः ॐ भूः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि अस्मिन् दिने क्रियमाणसमस्तकर्मसु स्थण्डिलपरिधिपरिस्तरणादि सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं शान्त्यर्थम् अभ्युदयार्थं च क्रियमाण पुण्याः भगवद्गीतनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मरुद्धताम् पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मरुद्धताम् पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मरुद्धताम् वृद्धस्य वृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठानयो भुवस्तान ऊर्जेतुधातना महेरणाय चक्षसे यो वश्यपदमौरसस्तस्य भाजयते हनः उषतेरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया यजिन्मथा आपो जनयथाचनः हिरण्यवर्णः शुचजः पावकायासजातः कश्यपोयास्विन्द्रः अग्नीया गर्भं मधुरे वरेपास्तान आपश्यग्वस्योना भवन्तो या सागुंराजा वरुणो यातमिभ्ये सत्यानृते वपुष्यञ्जनानाम् मधुश्रुतश्रुतयोजाः पावकास्तान आपश्यग्वस्योना भवन्तो यासाम् देवादिविकृण्वन्ति भक्षय्या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति याः पृथिवीं बलसोन्दन्ति शुक्रास्तान आपश्यग्वस्योना भवन्तो शिवेन मा चक्षुषा पश्यतापश्रुतया तनयोपस्पृशतत्वचं मे सर्वागुं अग्नेगुं रप्सुषदो हुवे वो नयवर्चो बलमोजोऽनुधत्ता यदतः सम्प्रियतेरहा वनदता हते तस्मादानद्यो नाम स्थिता वो नामानि सिन्धवः यत्प्रेषता वरुणेन ताश्रीभुवं समवल्गता तवाप्नोदिन्द्रो वो यतैस्तस्मादापो अनुस्थना अपकामग्वस्यन्दमाना अवीवर्तवोहिकम् इन्द्रो विशक्तिभिर्देवेस्तस्माद्वारणामलोहितम् एको देवो अप्यतिष्ठत्स्कन्दमाना यथा वशम् उदानिशुर्महेरित तस्मादुपगमुच्यते आपो भद्रा भूतमिदाप आसुरग्ने सोमो बिभ्रत्यापयुक्ताः तीव्रोरसोमधुभुजामरङ्गमामा प्राणेन सह वर्चसागन् आदित्यश्यां यदवा शृणोन्यामा घोषो गच्छति वाङ् आसाम्
मन्ये भेजानो अमृतस्य तर्हुरण्यवर्णाद्रमयि यदावः आपोहिष्ठामयोभुरस्तान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे यो वश्यपतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उशतेरुममातरः तस्मारङ्गमामवो यस्यक्षया निजन्मथा आपो जनयथा जनः दिविश्रयस्वान्तरिक्षे यतस्व पृथिव्या सम्भवद्ब्रह्मवर्चसमसि ब्रह्मवर्चसायत्वा पवमानस्वर्जनः येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यस्पनन्तुमा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यानगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पेदं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नेते सहमापनातो सोमस्वस्यावरुणस्य नीच्या हिमो राजा प्रवृणाभिस्पनातमा जातवेदामोर्जयन्त्यापनातो तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातभेषजं शन्नोस्तद्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दिश देवा ऋत्विजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशनासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिश गृहाः पशवो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिश्चाप ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिश यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अधोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायान् निहितोऽस्य जन्तोः तमकृतं पश्यतवीतशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोकायेषु चरन्ति प्राणागुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतः स विश्वा ओषधयोरसाश्च वेनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां ऋषिपुत्राणां महिषो मृगाणां श्येनो वृद्ध्वानागुस्वभितिर्वनानागुं सोमः पवित्रमत्येतिरेधन्नो अजामे काल्लोहितशक्लकृष्णां बह्वीं प्रजां जनयन्तीं स्वरूपां वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्यर्घ्याचमनयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் ஸ்ரீவாரி கல்யாண மகோத்சவத்தை நாம் சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். இதோ ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமயத்தராய் மலையப்ப சுவாமியை சேவிப்போம் இந்த நன்னாளிலே, மங்களகரமான வைபவத்திலே. இதோ அங்குரார்ப்பணம் என்னும் திருமலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை அர்ச்சக்கர் சுவாமி செய்ய உள்ளார். சேவிப்போம். நின்னருளாம் கதையின்றி மற்றொன்றில்லே நெடுங்காலம் பிழை செய்த நிலை கழிந்தேன், உன்னருள் கிணிதான நிலை உகந்தேன், உன் சரணே சரணென்னும் துணிவு பூண்டேன், மண்ணிருளாய் நின்ற நிலை எனக்கு தீர்த்து வானவர்தம் வாழ்ச்சி தர தரித்தேன் உன்னை, இன்னருளால் இனி எனக்கோர் பரமேற்றாமல் என் திருமால் அடைக்கலம் கொள் என்னை நீயே என்று ஸ்ரீ தேசிக்க பிரபந்தம் இது. பக்தர்களே, இதோ எந்த ஒரு காரியங்களையும் செய்ய வேண்டுமானால் ஆனந்த நிலையகா ஸ்ரீமன் கல்யாணம் குணசாகரஹா பக்த பிரியோ ஜெகநாதஹா ஸ்ரீனிவாஸ்துமே என்று நாம் அந்த பகவானை இதோ அங்குரார்ப்பண வேளையிலே சேவித்து கொண்டு இருக்கிறோம். திருமலை சாற்றுதல் என்கிற அங்குரார்ப்பணம் என்பது தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம், அதாவது மண் பாலிகையிலே நவ தானியங்களை வைத்து அதிலே திருத்துளாய் சேர்த்து அஷ்டதிக் பாலக்கரையும் தேவர்களையும் இந்த கல்யாண உற்சவத்திற்காக வரவேற்பு கொடுக்கிறார்கள். அதுதான் அங்குரார்ப்பணம் என்னும் திருமலை சாற்றுதல் என்பது. மலையப்ப சுவாமிக்கும் நாச்சிமார்களுக்கும் இந்த கல்யாண உற்சவத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக்கர் சுவாமி. பக்தர்களே, அந்த மண் பாலிகையிலிடும் நவதானியங்களானது திருமுலைகளை, அதாவது முளைவிட்டு பயிராக வளரும் அல்லவா, அப்படி நமது திருமண வாழ்க்கை கூட வசந்தமாக ஆனந்தமாக இன்பமாக இருக்கும் என்று அந்த ஆனந்த நிலையின் வாசலின் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நாம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இதோ திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பின் மூலமாக பகவானை நாம் சேவித்தால் நம்முடைய பாவங்களையெல்லாம் தொலைந்து நீக்கப்பட்டு புனிதமாகி விடுவோம். அதாவது
திருத்துழாய் என்றால் அந்த ஆண்டாளுக்கு மிக பிரியம். ஏனென்றால் அவள் அந்த வனத்திலேயே, அந்த துளசி வனத்தில் அருகிலே கண்டெடுக்கப்பட்டவள் அல்லவா. அப்படிப்பட்ட திருத்துழாய்க்கு புஷ்பங்களுக்கும் இல்லாத சிறப்பும் உண்டாம். புஷ்பங்களுக்கு கூட இருக்கிறது. ஆனால் அந்த திருத்துழாய் மூலம் ஆண்டாள் அந்த பகவானையே சேர்ந்து விட்டாள். அப்படிப்பட்ட ஆண்டாள் சேவிக்கும் பகவான் நமது திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண உற்சவத்திலே அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை இதோ அர்ச்சகர் சுவாமி மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்கிறார். பக்தர்களே, இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அடுத்த கைங்கரியமாக இப்பொழுது நாம் சேவிக்க போவது ரக்ஷா பூஜை. ரக்ஷா பூஜை என்றால் ஆதிசேஷனை ஆவாகனம் பண்ணி கொடுக்கும் கைங்கரியம்தான் ரக்ஷா பூஜை. இதோ அடுத்தடுத்த கைங்கரியத்தை இப்பொழுது நாம் சேவிப்போம். திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஆனந்த நிலை வாசனே திருவேங்கடமுடையானே சப்தகிரி வாசனே என்று சேவிப்போம். கல்யாணாத்புத காத்ராய காமிதார்த்த பிரதாயினே ஸ்ரீமத் வெங்கடநாதாய ஸ்ரீனிவாசாய தே நமஹா என்று சேவிப்போம். பக்தர்களே, இதோ அங்குரார்ப்பணம் என்னும் திருமலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதோ அடுத்ததாக ரக்ஷா பூஜை. ரக்ஷா பூஜையில் நாகராஜனை, அதாவது ஆதிசேஷனை ஆவாகனம் பண்ணி கொடுக்கும் கைங்கரியம்தான் ரக்ஷா பூஜை. ரக்ஷா பூஜையை தொடர்ந்து ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். இந்த ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலமாக திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் இதோ சேவிப்போம் ரக்ஷா பூஜை, பின்பு ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை. ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமயத்தராய் மலையப்ப சுவாமி வாரினுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை நாம் சேவித்து கொண்டுள்ளோம் இந்த நன்னாளிலே. இதோ இந்த மங்களகரமான வேளையிலே ரக்ஷையை முதலில் அர்ச்சகர் சுவாமி வைவாகிக மகோத்சவ கர்மணி பிரதிசர பந்தன தேவதாராதனம் கரிஷ்யே. ओम सुजेवो हव्यामृत सुजे नागुं श्रीगुं हिनां यद्भरगुं सुजेभ्यः हर्तेन सत्यमृतसापायं सुजन्मानसुजः पावकाः शन्नो निभृत्तां तपसो जहर्तां स्वयंभुरग्रे मृतजयमृताय शेषमावाहयामि सहस्रशीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि शेषाय नमः. इदमासनं शेषाय नमः. पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, शेषाय नमः. एते स्नानप्रोतवस्त्रोत्तरीयाभन्नपुष्पगन्धधूपदीपार्घ्याचमन नैवेद्य पानीय तांबूलादि सर्वोपचाराः. ओम स्वस्ति नो अमृता भस्मिना भग स्वस्ति देव यदितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो तथातन स्वस्ति द्यावा पृथिवीषु चेतना स्वस्तजे वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यजस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तजे स्वस्तजादित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तजे वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तजे देवावन्पुर्भव स्वस्तजे स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो आदिते गृधे स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्दताघ्नता जानता सङ्गमे महे स्वस्त्ययनन्तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वाजसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसकं समत्सु बृहद्यशोनाभिमुवारुहेम अम्भोमुचमाङ्गिरसङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च दार्क्ष्यम् प्रयतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति संबाधे शुभयन्नास्तु शुभगुं शुभम्. ओम नमो वेंकटेशाय. अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक गोविंद गोविंद. शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्. அமைதியான உருவத்தை கொண்டவரே, ஆதிசேஷன் மீது படுத்திருப்பவரே,
தொப்புளில் தாமரை கொடியை கொண்டவரே, தேவர்களின் தலைவனே, பிரபஞ்சத்திற்கு ஆதாரமானவரே, வானத்தை போல எல்லையற்றவரே, மேகத்தின் நிறம் போன்ற கரிய திருமேனி கொண்டவரே, மங்களகரமான உறுப்புகளை உடையவரே, மகாலட்சுமியின் கணவரே, தாமரை மலர் போன்ற கண்களை உடையவரே, யோகிகளால் தியானித்து அறியப்படுபவரே, விஷ்ணுவை வணங்குகிறேன். பிறப்பு மற்றும் உலக பயத்தை போக்குபவரே, அனைத்து லோக்கங்களுக்கும் உலகங்களுக்கும் ஏகநாதராக விளங்கும் அந்த மலையப்ப சுவாமியாரினுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தில் இதோ நாம் ரக்ஷா பூஜையை தொடர்ந்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். முதலில் பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கக்கூடிய அந்த ரக்ஷைக்கு பூஜையை செய்தார். பின்பு இப்பொழுது ஷோடச உபச்சாரத்தை தொடர்ந்து முதலில் பகவானுடைய திருக்கரத்திலும் பின்பு அவருடைய உபயநாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாய்மார்களுடைய திருக்கரத்திலும் அந்த ரக்ஷையை அணிவிப்பார் அர்ச்சக்கர் சுவாமி. பக்தர்களே, ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தி லக்குவனோடும் சுக்ரீவன், ஹனுமன், அங்கதன் முதலிய வானர படைகளுடனும் லங்காபுரி நோக்கி புறப்பட்டார் அல்லவா? அங்கே தென் திசை நோக்கி புறப்பட்ட தேவர் கோமான் திருவேங்கடமலை தன்னை வந்தடைந்தான். அந்த தெய்வ திருமகனது வருகையை அறிந்த ஹனுமனின் தாயாகிய அஞ்சனா தேவி முனிவர்கள் பலருடன் விரைந்து சென்று ஸ்ரீராமனை பணிந்து எழுந்தாளாம். முனிவர்களும் ஸ்ரீராமனின் திருநாமத்தை ஜபித்து நின்றார். அஞ்சனாதேவி சிரமீது கரம் உயர்த்தி உள்ளமும் உடலும் பொங்கி பூரிக்க, ஸ்ரீராமச்சந்திர பிரபோ, எத்துணை தவம் செய்தேனோ அறிந்தேலேன். உமது தூய தாமரை திருவடி இம்மலை மீது படுவதற்கு சிறுக்குண்ட அரக்கர்களை ஒடுக்க ஆவணியில் அவதரித்துள்ள புருஷோத்தமனே, தேவரீருடைய வருகையை எத்தனை காலமாக இந்த புவியில் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் தெரியுமா? ஐயனே, எங்களுடன் இந்த திருமலையின் கண் சில காலம் எழுந்தருளியிருந்து எங்களை மகிழ்வித்து திருவருள் புரிதல் வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தாளாம். அஞ்சனையின் அன்பு மொழிகள் கோதண்ட ராமனின் திருச்செவிகளில் தேன் போல் பாய்ந்தது. அஞ்சனையின் பக்திக்கு கடன் பட்டார். இத்தருணத்தில் திருமலையின் பேரொழில் உள்ளத்தை பறிக்கொடுத்து நின்ற ஹனுமன் ஸ்ரீராமனை பார்த்து, தேவாதி தேவா, நெடுந்தூரம் பயணம் செய்துள்ள நம் படை வீரர்கள் மிக்க களைப்புற்றுள்ளார்கள். அவர்கள் இளைப்பாறுவதற்கு இது தகுந்த இடம். எங்கு நோக்கினும் தன்மலை சாரல்களும் நீர்ச்சுனைகளும் காய்கனி பூத்துக் குலுங்கும் மரங்களும் உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்டு விட்டன. பிரபோ, தேவரீர் ஆணையிட்டால் சில காலம் இங்கு தங்கியிருந்து செல்லலாம் என்று விண்ணப்பித்தாராம். ஸ்ரீராமச்சந்திரன் முகம் மலர அஞ்சனா தேவியும் ஹனுமனையும் பார்த்து, தாயும் மகனும் சேர்ந்து வேண்டும் போது மறுக்கும் அளவிற்கு எனக்கு சக்தி இல்லையே, உங்கள் விருப்பத்தை யாம் பூர்த்தி செய்வோம் என்று திருவாய் மலர்ந்தாராம். ஹனுமன் மகிழ்ச்சி பொங்க வானர படைகளுடன் வனந்தாரங்களில் துள்ளி குதித்து செல்லலானான். ஸ்ரீராமனும் லக்குவனும் அஞ்சனா தேவியின் தவச்சாலையில் எழுந்தருளி சுக்ரீவனும் அங்கதனும் கூடவே சென்றார். அஞ்சனா தேவி இரு தெய்வ திருக்குமாரர்களையும் தங்கமணி பீட்டத்தில் அமரச் செய்து பாத பூஜை புரிந்து கனி வகைகளையும் நறுந்தேன் முதலியவற்றையும் கொடுத்து மகிழ்ந்தார். எல்லா முனிவர்களும் ஸ்ரீராமருக்கு பாதை பூஜை புரிந்து ஸ்ரீராமர் அனைவருக்கும் திருவருள் புரிந்தார். இவ்வாறு திருவேங்கடமலையில் தங்கியிருந்த ராமபிரான் ஒரு நாள் திருமலையின் இயற்கை அழகை கண்டு கலித்த வண்ணம் வந்து கொண்டிருந்தார். அந்த திருமலையில் சுவாமி புஷ்கரணி தீரத்தில் திருலோமன் என்னும் பெயருடைய அந்தனர் ஒருவர் தவம் செய்து கொண்டிருக்க ஸ்ரீராமன் அந்த தவச்செல்வரை திருநோக்கம் செய்தார். அந்தனர் தபோநிலை நீங்கி சக்கரவர்த்தி திருமகனை தரிசித்து கண்களில் நீர் பொங்க நிலத்தில் விழுந்து படிந்து எழுந்தார். ராமாய ராமபத்ராய ராமச்சந்திராய வேதசே ரகுநாதாய நாதாய சீதாய பதையே நமஹா என்று சொல்லிக்கொண்டே பணிந்து எழுந்தாராம். ஞானத்துக்கும் ஆனந்தத்துக்கும் இருப்பிடமான பெருமானே, சகல வித்தைகளும் ஆதாரமான அமலனே, நிர்மலமான பளிங்கு போன்ற பரந்தாமனே, அடியேனுடைய கண்முன்னே தோன்றிய திருமாலே, அடியேன் சத்திய லோக்கத்தை அடைவதற்காக நான் முகனை குறித்து தவம் இருந்தேன். அவர் முன்னே எழுந்தருளி என்னிடம் தேவரிலை சிந்தையில் இருந்து தவமிருந்து பிரம்மலோக்கத்தை வந்து அடைவாயாக என்று திருவருள் புரிந்து மறைந்தாராம். அன்று முதல் யாம் இந்த திருமலையில்
தேவனின் திருவடியை தரிசித்து முக்தி பெறுவதற்காக தவம் இருக்கிறேன் என தவம் பழித்துவிட்டது என் எண்ணம் கைகூட என் திருவருள் புரிதல் வேண்டும் என்று நிருலோமன் தமது விருந்தாத்தை விளக்கினார். பக்தர்களே, ராமனும் நிருலோமனுக்கும் பிரம்மலோக்கத்தை அடையும் பிறவாய் பெருவாழி அழித்து அருள் புரிந்தாராம். நிருலோமனும் தெய்வ விமானத்தில் பிரம்மலோக்கத்தை அடைத்து பேரின்பம் கொண்டார். அப்படிப்பட்ட அந்த ஸ்ரீமன் நாராயணின் திருத்தோற்றத்தை எண்ணி பார்த்து வானர வீரர்கள் பேரின்பத்தில் மூழ்கினார். ஸ்ரீனிவாசனின் தரிசனம் கிடைக்கப்பெற்ற வானர வீரர்களும் ஸ்ரீராமச்சந்திரனின் தரிசனம் கிடைக்கப்பெற்ற அஞ்சனா தேவியும் முனிவர்களும் என்றென்றும் நிலையான இன்பத்தில் நிறைந்து இருந்து அக்குகை வைகுண்ட குகை என்றும் வழங்கப்படும். அஞ்சனா தேவி தவம் இருந்த அந்த மலைதான் அஞ்சனாத்ரி என்ற திருநாமத்தை பெற்று விளங்கும் என்று திருமால் वैवाहिक महोत्सव कर्मणि औपासनाग्निमुखे आघार कर्म करिष्ये एतोन्विन्द्रमित्यज्ञालयं प्रोक्ष्य एतोन्विन्द्रं स्तवां शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्ध्वांसं शुद्ध आशीर्वान् ममत्तु इन्द्रशुद्धो नागहि शुद्धः शुद्धाभिरुतिभिः शुद्धो रयं निधारय शुद्धो ममध्ये सौम्यः इन्द्रशुद्धो हिनोरयं शुद्धो रत्नानि दासुषे शुद्धो वृत्राणि जिघ्नसे शुद्धो वाचं सुशाससे मयि देवात्रविणमाजिजन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवहूतिः देव्या होतारावनिशन्तपूर्वेरिष्टास्यां तनवासुवीराः मानिगाङ्गमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचता मे देवी षडर्वेरुणः कृणोत विश्वे देवास इह वीरयध्वम् माहास्महि प्रजयामातनोभिर्मारधामद्विशते सोमराजन् अग्निर्मन्युं प्रतिनदन् पुरस्तादब्धो गोपाः परिपाहिनस्त्वं प्रत्यञ्चोयन्तु निगुदस्मिनस्ते मीशान् चित्तं प्रबुधाविनेशतो उद्धन्यमानमस्यानेऽध्वन्त्वात्मानं यजमानस्य हन्तो तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ जातवेदो भुवनस्य रेत इह सिञ्च तपसो यज्ञ निष्यते अग्निमश्वत्थाभिधिहव्यवांशने गर्भा घृतप्रतीको घृतयोनिरग्निर्घृतैः सनिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वा सरितो वहन्ति घृतं विपन् सुजला यक्षि देवान् आयुर्दाग्ने हविषाजुषाणो घृतप्रतीको घृतयोनिरेधि घृतं वेत्त्वामभिचारगव्यं विदेव पुत्रमभिरक्षतादिमम् उपावरोह जातवेदस्मस्तं देवेभ्यो हव्यं वहनः प्रजानन् आयुः प्रजाभिमस्मासु धेष्युश्रोदेदिहिनादुरोणे अग्न आयाहि वेतजे ज्ञानो हव्यदातजे निहोता सत्स्य बर्हिषि अयं तेजो निरुत्विजोजतो जातो अरोचथाः तञ्जानन्नग्नारोहाथानो वर्धयारयिम् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसवा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् विषेमतः वेनावः स बुद्धिजा उन्मास्य विष्ठाः सदस्यजो निमसदश्रुवः ॐ भूर्ब्रह्मा नमावाहयामि ॐ भुवः प्रजापतिमावाहयामि ॐ सुवः पितामहमावाहयामि ॐ भूर्भुवः सुवर्हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनम् ओं सोमो धेनुगुं सोमो अरुणन्दनाशुं सोमो वेरङ्करमन्यं ददातु साधन्यं दक्षं सुभेयं दुश्रमणं ददातु तस्मै ओं भूस्वमावाहयामि ओं भुवरयज्ञाङ्गमावाहयामि ओं सुवरिन्दमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावृद्धयत्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु सप्तर्षेणादि स्मृतान्यत्र अगस्तत्रेणं यज्ञं यजमानं च धेहि ओं प्रोक्षा सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावृद्धयत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षेणादि स्मृतान्यत्र अगस्तत्रेणं यज्ञं यजमानं च धेहि ओं प्रोक्षा पवित्रेस्थो वैष्णव्येस्थो यज्ञेस्थो वायुभूतेस्थो विष्णोर्मनसा भूतेस्थो यज्ञस्य पावनेस्थः परशुरस्य पवित्रेस्थो वैष्णव्यो देवसवितः प्रसोपनात् पच्छद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिपुरापो देवेरग्रे अग्रे भुवाग्रेमं यज्ञन्न यताग्रे यज्ञपतिं भत्त युष्मादिन्द्रोपणेत वृत्रतोर्य योजमिन्द्रमग्ने भूवृत्रतोर्ये प्रोक्षितास्था कृष्णास्याखरेष्ठो मिलेत्वा स्वाहा वेदरस्य बर्हिषेत्वा स्वाहा बर्हिरस्य श्रुभ्यस्त्वा स्वाहा विष्णोस्तोपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तोपोऽसि उत्तरतोदीच्केर्युं जनमसि विष्णोस्तोपोऽसि पश्चिमतः सोधत्तां देवेभ्यः विष्णोस्तोपोऽसि
विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदाविष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि गन्धर्वोऽस विश्वावसुर्विश्वस्मादीशतो यजमानस्य परिधिर्डईरितः इन्द्रस् वानस्पत्यासि देवेभ्यः शृण्वस्व पृथिव्यावो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु सुवो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषाय वः अनया पृथिव्यावो गृहीष्यामि ब्रह्मण्यपः प्रणेष्यामि यजमानवाचिं यच्छा प्रणययज्ञं देवता वर्धयत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षेणाविं सुकृता यत्र लोकस्तत्रैवं यज्ञं यजमानं च धेहि ॐ प्रणया सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवाचिं यच्छा प्रणययज्ञं देवता वर्धयत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षेणाविं सुकृता यत्र लोकस्तत्रैवं यज्ञं यजमानं च धेहि ॐ प्रणया प्रणितपात्रयोः ब्रह्माणमावाहयामि सोममावाहयामि को वस्प्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञं संसादयन्तु नः इदं वदन्ति वृतपुष्टा उदागुस्सहस्रकोशं यजमानेऽन्यञ्चति को वो युनक्ति सुनो युनक्तु संविहिन्तान् देवेर्विशुष्पात्राणि देव यज्ञायैः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् दक्षिणप्रणतो ब्राह्मेण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसोनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्रानावाहयामि अप उपस्पृश्य श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पोषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि उपासन यज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यपात्रे प्रजापतयजुष्टं नृपपामि इन्द्रायजुष्टं नृपपामि अग्निजयुष्टं नृपपामि सोमायजुष्टं नृपपामि अग्निजयुष्टं नृपपामि सोमायजुष्टं नृपपामि अग्निसोमाभ्याञ्जुष्टं नृपपामि प्रजापतयजुष्टं नृपपामि ब्रह्मणेजुष्टं नृपपामि इन्द्रायजुष्टं नृपपामि वसुभ्योजुष्टं नृपपामि मरुभ्योजुष्टं नृपपामि रुद्रेभ्योजुष्टं नृपपामि अप उपस्पृश्य श्रीविष्णवेजुष्टं नृपपामि बृहस्पतयजुष्टं नृपपामि मित्रायजुष्टं नृपपामि वरुणायजुष्टं नृपपामि आदित्येभ्योजुष्टं नृपपामि अश्वभ्याञ्जुष्टं नृपपामि पोष्ण्याजुष्टं नृपपामि कक्षायजुष्टं नृपपामि कक्षदेवत सोमायजुष्टं नृपपामि उपासनयज्ञायजुष्टं नृपपामि यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्योजुष्टं नृपपामि सर्वदेवेभ्योजुष्टं नृपपामि आज्यं तृप्त्यधिसृजामि चरं तृप्त्यधिसृजामि अग्ने ज्योतिरसि समिरसि स्वाहा अमृतमसि वारणमसि अंतरितभुंडक्षो अंतरित आराधयः प्रत्यष्टकं रक्षः प्रत्यष्टा आराधयः चित्पतिस्त्वापनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्त्वापनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्तासविधापनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करजं पूर्णावासनिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां हृदं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च्य अक्षता आज्या चरुभिः ओम इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः गुरुवृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः अजिराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः प्रजापसे नमः पंचराथसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः हिमाने अग्निष्टकाधे नमः संत्वेकाच शतं च सहस्रं च आयुतं च नियुतं च प्रयुतं च आर्बुदं च निर्बुदं च समुद्रश्च मध्यं च आन्तश्च परार्थश्च हिमाने अग्निष्टकाधे नमः सन्तो अस्मिन् आधारकर्मणे ब्रह्मं सोमयज्ञमाधात्स्य आधस्यासनेभ्यः स्वाहा वायुव्याधाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अप उपस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यागु स्वाहा पोष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा उपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याधिकार्य सर्वं सावित्र्या गृहीत्वा जुह्वायाहृतिर्जुहोति ओम भो स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम सुव स्वाहा ओम भूर्भुव सुव स्वाहा अदितेन्मग्गस्थाः हनुमतेन्मग्गस्थाः सरस्वतेन्मग्गस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओम भूः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि उपासनाग्नौ कृता आधारान्ते स्वरमन्त्रा श्रुतिविपर्यासंज्ञातिरिक्त सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषड्वैष्णवाहुतेर्होष्ये अदितेर्मन्यस्व अनुमतेर्मन्यस्व सरस्वतेर्मन्यस्व देवसवितः प्रसवाम् अतो देवामन्दनो यतो विष्णुर्विचक्रमे
पृथिव्याः सप्तधामभ्यः स्वाहा इदं विष्णुरविचक्रमे त्रेधानदधे पदं समूढमस्य पादं सुरे स्वाहा त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य युज्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुरात तद्गुस्वाहा तद्विप्रासोपन्यवो जागृवागुं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा ॐ सुव स्वाहा ॐ भूर्भुवः सुवः स्वाहा अदितेन्ममग्रस्थाः अनुमतेन्ममग्रस्थाः सरस्वतेन्ममग्रस्थाः देवसवितः प्रासावीः ఎవరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామె పెండ్లాడేరా ధనమోచి ఎవరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామె పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశాడకు మము రప్పించి పలసినట్టు కరుణ ధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగవించేరా చంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగవించేరా అందపు శ్రీ వెంకటేశాడకు మమ్ము రప్పించి సింధులతో నిత్తే తిరువీధులేగవయ్యా ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా పేరుకొని తమ వద్ద వేరటాళ్ళు కొడగాను సారెకు పెండాడకున్న సంతసమౌనా పేరుకొని తమ వద్ద వేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండాడకున్న సంతసమౌనా ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వమును అవధరించరయ్యా
వాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవై పంకజం చక్రం బిభ్రతమిందిరా వసుమతీం సంశోభి పార్శ్వద్వయం కేయూరాంగదహారకుండలధరం పీతాంబరం కౌస్తుభం దీప్తం విశ్వధరం స్వవక్షవిలసత్ శ్రీవత్సచిహ్నం భజే సుచక్రశంఖం కటివరదహస్తం స్వర్ణాంబరం రత్నకిరీటకుండలం ప్రళంబసూత్రోజ్వలమాల్యభూషణం నమామ్యహం శ్రీవేంకటశైలనాయకం. అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాద్భుతశక్త్యాద్భ్రియమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటిబ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయవాకాశాహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామధోభాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్యాష్టదిగ్దంతి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్ కిలకావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరుతి వరుణవాయుకుబేరీశానాఖ్య అష్టలోకపార్క పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవణేక్షుసురాసర్భిర్భిక్షేరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవపరివృతే జంబోప్రక్షకుశక్రౌంచ శాకజాలమలి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపదీపితే మహేంద్రమలయ సహ్యశుక్తిమదృక్షవద్వింధ్య పారయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కింపురుష హరీలావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరమణక గురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకశేరుతామ్రగభస్తి పున్నాగంధర్వ సౌమ్యవరుణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయా పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీవేంకటాచలక్షేత్రే శ్రీరంగస్యోత్తరదేశే శ్రీ అహోబలగరుడాచలస్య పూర్వదిగ్భాగే కృష్ణాకావేర్యోర్మధ్యప్రదేశే సత్యవ్రతక్షేత్రే సకలదేవతాసన్నిధౌ సకలజగత్స్రష్టుః పరార్థద్వయజీవినో బ్రహ్మణో ద్వితీయపరార్థే ప్రథమవర్షే ప్రథమపక్షే ప్రథమే హని ద్వితీయయామే త్రయోదశఘటికా ద్విచత్వారింశద్విఘటికాసు గతాసు తృతీయముహూర్తే ప్రథమ ప్రాణాయామకాలే పురుహూతనామధేయేంద్రసమయే పార్థివకూర్మ ప్రజానంత శ్వేతవరాహ బ్రాహ్మ సావిత్ర్యాఖ్య సప్తకల్పానాం మధ్యే పంచమే శ్వేతవరాహకల్పే స్వాయంభువ స్వారోచిషోత్తమ తామసరైవత చాక్షుష వైవస్వత సూర్యసావర్ణి ధర్మసావర్ణి దక్షసావర్ణి రుద్రసావర్ణి బ్రహ్మసావర్ణి ఇంద్రసావర్ణి వేదసావర్ణ్యాఖ్య చతుర్దశమన్వంతరాణాం మధ్యే సప్తమే వైవస్వతమన్వంతరే తత్రైకసప్తతి మహాయుగానాం సప్తవింశతి మహాయుగేష్వతీతేషు తదుపరి అష్టావింశతి మహాయుగే అష్టావింశతి సహస్రాన్విత సప్తదశలక్షాబ్దే కృతయుగే యాతే షణ్ణవతి సహస్రాన్విత ద్వాదశలక్షాబ్దే త్రేతాయుగే యాతే చతుషష్టి సహస్రాన్విత అష్టలక్షాబ్దే ద్వాపరయుగే యాతే ద్వాత్రింశత్సహస్రాన్విత చాతుర్లక్షాబ్దే వర్తమానే కలియుగే ప్రథమపాదే యుధిష్ఠిర విక్రమార్క శాలివాహన విజయాభినందన నాగార్జున కల్కి భూపాఖ్య చచ్చఖానాం మధ్యే తృతీయే శాలివాహన శకే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతత్క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాదకాది సమస్త దుర్దక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితధామాతపసంఘాత కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యో తీర్యా తిలై సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశేర్ వర్ష సహస్రావసానే ఏకైక తిలాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాశ్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాస సిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్ర ఆప్తోర్యామశాంతపన వాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారోప్య సాయుజ్యమితి చతుర్విధ మోక్ష ఫల సిద్ధ్యర్థం శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపదేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమిలీలాసమేతస్య
एतत् शेषाचरणवासनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं परव्योह विभवान्तर्याम्यर्चा स्वरूपरूपगुण उभवैश्वर्यादिरूपक श्री विघ्नो मनीन्द्र मतानुसारभिर्भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर् वसिष्ठादिभिर्दिव्यमहर्षिभिरुक्ता गृह्यधर्मशास्त्र पुराणेतिहास प्रतिपादित कन्यादानकल्पोक्तस्कलफलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शनपाञ्चजन्यकौमोदकीनन्दकशाङ्ग दिव्यपञ्चायुधालङ्कृतकोटिसूर्यसमप्रकाशस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानसभगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य पञ्चविधव्यूहभेदेन प्रवर्तमानस्य परव्यूहविभवान्तर्याम्यर्चावताररूपकस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणान्नत्रे आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयस्वकर्मणोख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमणिकिरण विजृम्भित पादारविन्दस्य अर्चावतार भगवतः प्रद्युम्नावतारकस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटकटककेयूरहार दिव्याभरणभूषिताय श्रीवत्साङ्कितवक्षस्काय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यमाल्योभिशोभिताय दिव्यपीताम्बरधराय प्रपन्नपारिजाताय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय द्विजावताराय अचिन्त्याद्भुतनित्ययौवनस्वभावलावण्यतेजो दिव्यरूपकाय अखिलशाखाध्यायिनौ अखिललोकपवित्ररूपाय श्रवणनक्षत्रे मकरराशौ जाताय श्री श्रीनिवासपरब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्मणयज्ञसूत्रोद्भवीं चतुर्वेदशाखाध्यायिनीं भार्गवच्यमन आप्नुवान औरुपवेदलपञ्चाऋषेयप्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गनासंसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकां भृगोः सङ्कल्पतनयां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरफल्गुणे नक्षत्रे कन्याराशौ जाताम् अयोनिजां श्रीदेवीनाम्नीम् इमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि। ऋग्यजुस्सामधर्मणयज्ञसूत्रोद्भवीं चतुर्वेदशाखाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणैर्ध्रुवत्रयाऋषेयप्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गनासंसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गीं कश्यपसङ्कल्पतनयां कार्यप्रकृतिरूपां रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जाताम् अयोनिजां भूदेवीनाम्नीम् इमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णुवेदुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषया कन्यां सरङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्बराः सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु। ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. பக்தர்களே, திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் ஸ்ரீவாரி கல்யாண மகோத்சவத்திலே மகா சங்கல்பம் மற்றும் கன்னிகாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வை சேவித்தோம். இதோ அடுத்த கைங்கரியமாக மாங்கல்ய தாரண கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். அதற்கு முன்பாக திருமாங்கல்யங்களை
மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்கியம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்த பின்பு அதை தாய்மார்களுக்கு சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி அந்த மாங்கல்யங்களை. சீதாவின் சுயம்வரத்திற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த போட்டியில் ஸ்ரீராமர் வெற்றி பெற்றார் அல்லவா? அதற்காக முறைப்படி தன் மகளை ராமனுக்கு திருமணம் செய்விக்க நினைத்த ஜனகன் தனது எண்ணத்தையும் அதை நிறைவேற்ற தசரதன் வருகையும் தேவை என்பதறிந்து தனது நாட்டிற்கு வருமாறு முறைப்படி ஓலை அனுப்பினான் ஜனகன். தசரதனின் புதல்வர்களும் முனிவரும் பிரத்யேகமான முறையில் கவனித்துக் கொள்ளப்பட்டனர். தனது நாட்டிற்கு வந்த மிதிலை நாட்டின் தூதுவர்கள் கொண்டு வந்த ஓலை செய்தியின் வாசகத்தை உணர்ந்த தசரதன் தன் 4 வகை படைகளோடும் 3 மனைவியரோடும் வசிஷ்டரான தலைமையிலான பல அந்தணர்களோடும் பொதுமக்கள் வெள்ளத்தோடும் மிதிலையை நோக்கி பயணமானார். அப்படைகள் மிதிலை அடைவதற்குள் செய்த பல்வேறு வர்ணனங்களை காவிய போக்கில் எடுத்து கூறியதாம். மிதிலைக்கு சென்ற தசரதன் படைப்பெருக்கம் பற்றியும் அப்படையினரோடு அருந்தியின் கவனமான வசிஷ்டரின் முத்து பல்லக்கில் சென்றான் என்றும் வழியில் இருந்த சந்திர சைலம் பற்றிய சந்திர சைல படலம் மற்றும் வரைக்காட்சி படலம் ஆகியன முழுக்க முழுக்க இயற்கை சேர்க்கை வளைத்த உடையவனாக இருந்ததை வர்ணனைகள் மூலம் விளக்குகிறார் கம்பர். அப்படி தன் தந்தையான தசரதன் மிதிலைக்குள் பிரவேசிப்பதை உணர்ந்த ஸ்ரீராமர் தன்னை சிறப்பாக அலங்காரம் செய்து கொண்டு லக்ஷ்மணனோடு தந்தையை எதிர்கொண்டு அழைக்க சென்றாராம். பரத சத்ருக்னரையும் தாய்மார்களையும் கண்டு ஆசி பெற்று அவர்களோடு வந்த ஸ்ரீராமனின் அழகை மிதிலையின் மக்கள் கண்டு ரசித்தனர். தங்கள் இளவரசிக்கு கிடைத்த அந்த பேரழகின் அழகை கண்டு வியந்தனர். தன் தந்தையோடும் சேனைகளோடும் வந்தவனமான பரதன் தன்னை பணிந்த போது பரதனை ராமன் தழுவிக்கொண்டான். எங்கும் பேரானந்தம் எதிரொலித்தது. தங்கள் இளவரசியின் மணலாளனாக போகும் ஸ்ரீராமனை அனைவரும் வைத்தக்கண் வாங்காமல் நோக்கி அவனது அழகை கண்டு ரசித்தாராம். கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் நிலையாக கம்பர் கூறும் கவிநய பாடல்: தோள் கண்டார் தோளே கண்டார் தொடுக்கடல் கமலம் மன்ன தாழ் கண்டார் தாளே கண்டார் தடக்கை கண்டாரும் அந்தே வாள் கொண்ட கண்ணார் யாரே வடிவினை முடிய கண்டார் உள்கொண்ட சமயத்து அண்ணான் உருக்கண்டாரை என்று. அதாவது தசரத சக்கரவர்த்தி சிறப்பான முறையில் வரவேற்றார். அனைவரும் பெருமகிழ்வோடு அரண்மனை அடைந்தனர். அனைவரும் ஓய்வெடுத்தனர். தசரத மன்னன் அந்த காலத்திலிருந்து குலமுறை வழக்கப்படி தனது குலத்தின் பெருமையை வசிஷ்டர் மூலம் எடுத்துரைத்தாராம். இந்த பரம்பரையில் வந்த இஷ்வாக்கு பிரம்மலோகம் வரை சென்று ஸ்ரீரங்கநாதரின் விக்கிரகத்தை வாங்கி வந்து அயோத்தியில் பிரதிஷ்டை செய்த பெருமைக்கு உரியவராய் இருந்ததால் இட்ஸ்வாக்கு குலம் என்னும் பெருமையும் பெற்றது என்று கூறி வந்தாராம். இடையில் மாந்தாத்தா புகழ், கடைசியில் அயன் என்ற அரசன் அயோத்தியை ஆள அவருடைய புதல்வராக தசரதரும் அவரின் புதல்வராக ஸ்ரீராமரும் மற்றும் 3 குமாரர்களும் அவதரித்துள்ளார் என்று குலமுறை எடுத்துரைத்தார் வசிஷ்டர். ஜனகரும் சபையோருக்கு தன்னுடைய நிமிக்குலத்தை பற்றி எடுத்துரைத்தாராம். சபையோர்கள் மகிழ திருமணம் உறுதி செய்யப்பட்டது. அப்போது சீதையை கண்ட வசிஷ்டர் தாமரை மலரில் குடியிருப்பவளான ஸ்ரீ மகாலட்சுமியே சீதாவாக வந்துள்ளாள் என்று உறுதி செய்து மகிழ்ந்தாராம். எங்கள் செய் தவத்தினில் ராமன் என வந்தோன் சங்கினோடு சக்கரமுடை தனிமுதற்பேர் கண் அரசு ஆதலின் அவ அள்ளிமலர் புல்லும் மங்கையலாம் என வசிஷ்டன் மகிழ்வுற்றானாம். ஆஹா! சீதையின் பேரழகை கண்ட விஸ்வாமித்ரர் முனிவர் பின்வருமாறு வியப்புடன் கூறுகிறார்: சிலை போலும் அழகிய இந்த சீதையை அடைவதற்காக சிவதனுசு என்ற ஒரு சிலை, அதாவது ஸ்ரீராமன் 7 மலைகளையும் பொடி பொடி ஆக்குவானே என்றாராம். அச்சு என நினைத்த முதல் அந்தணன் நினைத்தான் பச்சை மலை ஒடித்த படிவத்து அடல் ராமன் நச்சுடை வடிக்க கண்மலர் நங்கை இவள் என்றால் இச்சிலை கிடைக்க மலையேலையும் ராணோ என்று. அதாவது மகாவிஷ்ணுவின் அவதாரமான ஸ்ரீராமருக்கும் மகாலட்சுமியின் அவதாரமான ஸ்ரீ சீதாதேவிக்கும் பங்குனி மாத உத்திரம் நட்சத்திரத்தில் திருமண சடங்குகள் நடைபெற்றது. சீதாவை ராமனாக்குதாரை வார்த்து தந்தான் ஜனகன். சுற்றி நின்ற அனைவரும் லாழ்த்தொலி கூறினார்.
ராமன் சீத்தையை கைப்பற்றி தீவலம் வந்தான். சீத்தை அம்மி மிதித்து அருந்ததி கண்டாள். வேதம் வல்ல அந்தணர்கள் முறைப்படி செய்த அந்த திருமண நிகழ்வானது இனிதே முடிந்து இருவரும் பெரியோர்களையும் முனிவர்களையும் சீத்தை தனது 3 மாமியார்களையும் அடிபணிந்து வணங்கினாள். பின்னர் இருவரும் பள்ளி சேர்ந்தனர். திருமணத்தின் போது சீதா தேவியின் கரம் பற்றிய ராமன் சீத்தையிடம் தந்த உறுதிமொழி என்ன தெரியுமா? அந்த பிறவியில் சீதா தேவியை தவிர வேறு எந்த பெண்ணையும் மனதாலும் கூட நினைக்க மாட்டேன் என்று கொடுத்த வாக்கினை கடைப்பிடித்த தர்மசீலன் ராமன் என்பதையும் ஏகபத்னி விரதன் என்பதையும் அறிந்து மகிழ்ந்தோம். அதை பாரத நாட்டு ஆடவர் அனைவரும் கடைப்பிடித்ததால் நம் நாட்டினுடைய பாதி இன்னல்கள் அகன்று போங்கும். பக்தர்களே, ஸ்ரீராமன் சீத்தைக்கு கொடுத்தான் என்பதை சுந்தர காண்டத்தில் சீதாதேவி நினைத்து கூறும் உள்ளத்தை உருகும் செய்தியாக அமைந்துள்ள பாடலில் இடம்பெற்றுள்ள நாம் அறியலாம். அப்படிப்பட்ட அந்த மகாலட்சுமி அவதாரமே சீதாதேவியாக இந்த கலியுகத்தில் அவதாரம் செய்து அந்த பரந்தாமனை இதோ இப்பொழுது நமக்கு காட்சியை தந்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த மாங்கல்ய சீதா சாவித்ரே மாங்கல்யதந்துனா நேனா லோகரக்ஷண ஹேதுனா கண்டே வத்னாமி சுபகே ரக்ஷந்து சரதாம் சதம் श्रिये जात श्रियानिर्याय श्रियं वयोगिर्वृद्ध्या दधाति श्रियं वसानामृतत्वमायन् भवन्ति सत्यासमिधामि तद्रौ श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि ओम प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजता तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथ सीता सावित्री माङ्गल्यतन्तुना नेना लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षन्तु शरदां शतं मेदिनी देवी वसुन्धरा स्यात् वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं विष्णुर्मनः हरिण्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि माङ्गल्यधारण मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु औपासनाग्निमुखे प्रधान होमं होष्ये अदितेनुमन्यस्व अनुमतेनुमन्यस्व सरस्वतेनुमन्यस्व
देवसवितः प्रसुवा अग्निरेतु प्रथमो देवतानागुंसोऽस्यै प्रजां मुञ्चत मृत्युपाशात् तदेवं राजा वरुणोऽनुमन्यतां यथेजग्स्त्री पौत्रमघन्नरोदात् स्वाहा इमामग्निस्त्रायतां गारहपत्यः प्रजां मुञ्चत मृत्युपाशात् तदेवं राजा वरुणोऽनुमन्यतां यथेजग्स्त्री पौत्रमघन्नरोदात् स्वाहा इमामग्निस्त्रायतां गारहपत्यः प्रजामस्यैन यत् दीर्घमायुः अशोन्योपस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमभिप्रबुध्यतां यज्ञस्वाहा इमं मे वरुणश्रुधेहमद्या च मृडया त्वामवस्यराचके स्वाहा तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः सदाशास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोधिर्षगुं समानायुः प्रमोषे स्वाहा पुन्ना अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडोपजासि श्रेष्ठाः यजिष्ठो बह्नितमशोषजानो विश्वाद्वेषागुंसे प्रममध्यस्मत् स्वाहा सत्वन्नो अग्ने भुमो भवोते नेदिष्ठो अस्या उषसो व्यष्टौ अवयक्ष्मनो वरुणपुन्दराणो वेहिमृडेकमुं सहवोनयेधि स्वाहा त्वमग्ने अयास्यजासन्मनसा हितः अयासन हव्यमोहिषे यानोद्धेहिभेषजग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा ॐ सुव स्वाहा ॐ भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्ममग्रस्थाः अनुमतेन्ममग्रस्थाः सरस्वतेन्ममग्रस्थाः देवसवितः प्रासावीः ॐ भूः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि औपासनाग्निमुखे राजहोमं घोष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुवा इमान् लाजानामित्यभिघार्य ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निर्नुमन्यताम् इयन्नार्युपब्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोषधीना गुंरसेनोत्पर्जन्यस्य तुष्मेणोदस्थाममृतागुम् अनु विश्वा उत त्वया वयं धारा उदन्या इव अतिगाहे महिद्विषः इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्युपब्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोषधीना गुंरसेनोत्पर्जन्यस्य तुष्मेणोदस्थाममृतागुम् अनु विश्वा उत त्वया वयं धारा उदन्या इव अतिगाहे महिद्विषः इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्युपब्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोषधीना गुंरसेनोत्पर्जन्यस्य शुष्मेणोदस्थाममृतागुम् अनु विश्वा उत त्वया वयं धारा उदन्या इव अतिगाहे महिद्विषः ॐ भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा ॐ सुव स्वाहा ॐ भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्ममग्रस्थाः अनुमतेन्ममग्रस्थाः सरस्वतेन्ममग्रस्थाः देवसवितः प्रासावीः ॐ भूः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि औपासनाग्नौ कृतलाजहोमान्ते स्वरमन्त्र तन्त्र श्रुतिविपर्यास न्यूनातिरिक्त सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिसिद्वैष्णवाहुतेर्होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुवा अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधार्दधे पदम् समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरजः दिवेव चक्षुराततग्स्वाहा तद्विप्रासोपन्यवो जागृवागुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा ॐ सुव स्वाहा ॐ भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्ममग्रस्थाः अनुमतेन्ममग्रस्थाः सरस्वतेन्ममग्रस्थाः देवसवितः प्रासावीः ॐ भूः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि औपासनाग्नौ कृत सर्वहोमान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम्
एतत् कर्म साद्गुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुवा यदस्य कर्मणात्यरेर्संयद्वान् यो न महाकरम् अग्निष्टत्स्पष्टकृद्विद्वान् सर्वद्वस्पष्टकं सोदङ्गरोतु स्वाहा अग्नजे स्पष्टकृते सुहृतहुताहुतीनां कामानां समर्थचित्रे स्वाहा अग्नजय स्वाहा अग्नजय नादाज स्वाहा अग्नजय नपतजय स्वाहा प्रजापतजय स्वाहा इंद्राज स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं दैवतमस्मै स्वाहा अग्नजय स्पष्टकृते स्वाहा वास्तवते नमो वास्तवतजय स्वाहा जन्म आत्मनो बिन्दाभूतग्निस्तत्पुनराहार्जातवेदाविचर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरदात् पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्विनाजुवन् चक्षुराधत्तमक्ष्यो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वषडनिष्टेभ्यः स्वाहा भेषजुन्दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दूरार्घ्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा रथ्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं वशत्कृतमत्यनोक्तं च यज्ञे एधोऽस्येधिषीमहि स्वाहा समिदसि तेजोसि तेजोमयिधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्तजिह्वाः सप्तर्षयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा युजन्ति सप्तजो नीरावृणस्वाभृतेन स्वाहा अर्थधान विद्वानष्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तक स्वाहा वेदर्भक्तक स्वाहा ज्योर्भक्तक स्वाहा पृथिवीभक्तक स्वाहा ओषधि वनस्पतिगन्धर्वाप् सरसस्यैव भक्तक स्वाहा अग्निर्जीर्णक स्वाहा वेदर्जीर्णक स्वाहा ज्योर्जीर्णक स्वाहा पृथिवीजीर्णक स्वाहा ओषधि वनस्पतिगन्धर्वाप् सरसस्यैव जीर्णक स्वाहा समन्तां बर्हिर्हविषावृतेन समादित्यैर्वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तान् दिव्यन्नभो गच्छतु यत् स्वाहा वरिशिष्ठाकः परेष्ठो ब्रह्मचो अबावधीन् द्वेषमचो आज्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा दक्षिणतः परिधिमपनया पश्चिमतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् परसमूह्य ग्रन्थीन् विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष्य उपस्पृश्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधजो मरुतां पृषदयस्थदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरज स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूतिः आदित्यः सोमे नमः त्रयायुषं जमदग्ने त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे तधातरा महेरणाय चक्षसे यो वश्यपदमोरसस्तस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्यक्षजाय जन्मथा आपो जनयथाचनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहगुं हरस्वी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रजं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु ॐ च मे स्वरश्च मे यज्ञोपचते नमश्च यत्ते न्यूनं तस्मै त उपयत्ते अतिरिक्तं तस्मै ते नमः बालकृतं वा चरितं वा सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा होत्रहीनं वा विशुद्धहारमुपाग्नजे जातवेदसे भगवान् प्रज्वलित ओं नमः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं दासना युद्धितं तमया देव परिपूर्णं तदस्तुते प्रायश्चित्तान्यशेषानि होमकर्म आत्मकानि वै तादिशेषावशेषाणां श्रीकृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्रीभूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्यध्यानं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि पुरोपहारं निवेदयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुमधास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च
భగవత్ సమారోపణం సర్వం శ్రీ భూమిలీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓ వెంకటేశాయ. அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகா கோவிந்தா கோவிந்த. பக்தர்களே, திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் ஸ்ரீவாரி கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். இதோ லாஜ ஹோமத்தை ஆரம்பித்த அர்ச்சகர் சுவாமி பூர்ணாகுத்தியுடன் பூர்த்தி செய்கிறார். அடுத்த கைங்கரியத்திற்கு தயாராகிவிட்டார். வாரணம் 1000 குலவலம் செய்து நாரண நம்பி நடக்கின்றதா என்று தீர்ப்பூரண பொற்குடம் வைத்து புறமெங்கும் தோரணம் நாட்ட கனா கண்டேன் தோழி நான் என்று கல்யாண குணங்கள் நிறைந்த ஸ்ரீமன் நாராயணன் 1000 யானைகள் புடைசூழ ஊர்வலமாக வருவதால் எதிரே பொன்மயமான பூரண கும்பங்கள் வைத்து நகர் முழுவதும் தோரணங்கள் நாட்டியிருப்பதாக நான் கனவு கண்டேன் தோழியே என்று இடது தோள்களில் வீற்றிருக்கும் சங்க ஆழ்வாரை கேட்டாலாம் ஆண்டாள் பிராட்டி. எம்பெருமானோடு நெருங்கிய சம்பந்தம் அல்லவா? ஆகவே அவளையே விழித்து தனதை தாப்பத்தை சொன்ன ஆண்டாள் தான் கண்ட கனவில் கூட எம்பெருமானையே மணப்பதற்காக கண்டு தன் தோழிக்கு எடுத்து சொல்லியதே வாரணமாயிரம் என்று தொடரும் பாசுரங்கள். அந்த பாசுரங்களே இதோ இந்த தேங்காயை உருட்டி விளையாடும் நிகழ்வின் போது பாராயணம் செய்வது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. பக்தர்களே, இதோ இதை தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம் என்பது அடுத்த நிகழ்வு. திருக்கல்யாணம் முடித்த பின்னர் முகூர்த்த மாலையை தம்பதிகள் இருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் மாற்றிக்கொள்வது சம்பிரதாயம்தானே. அப்படிப்பட்ட அந்த புதியதான எம்பெருமானின் சூடிய புஷ்ப மாலை முதலில் அவரது திருமார்பு நாச்சியாரான ஸ்ரீதேவி தாயாரிடம் கொண்டு போய் அவளது திரு தோள்களுக்கு சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அவள் சூடி மகிழ்ந்ததும் பின்பு அதே மாலையை மலையப்பனிடமே இதோ வந்து சேர்ந்தது. பக்தர்களே, அடுத்ததாக இனி ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமி பிராட்டியிடம் எம்பெருமான் சூடிய புஷ்ப மாலையை இதோ வந்து அர்ச்சகர் சுவாமி சமர்ப்பிக்க உள்ளார். சேவிப்போம். இந்த கண்ணனின் மணமாலைக்காக பொறுமையாக காத்திருந்த ரமாதேவி அல்லவா அவள்? பொறுமையின் பூஷணம் அவள் சுடி கொடுத்த மாலை அடுத்ததாக இதோ மலையப்பனிடமே வந்து சேர்ந்து மாலை பரிவர்த்தனம் மாலா பரிவர்த்தனம் என்கிற கைங்கரியம் மங்களகரமாக முடிவடைகிறது. இப்படி 3 முறை மாலையை மாற்றியாகிவிட்டது. பக்தர்களே, இனி அடுத்ததாக தாயாரை இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு அருகில் சேர்த்து ஸ்ரீ பூசமேத ஸ்ரீனிவாச பெருமாளை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை பெறுவோம். பக்தர்களே, மூவரையும் ஒரு சேர சேவிக்கும் இருக்கும் பாக்கியங்களை பெற்றுள்ளோம் அல்லவா? அதை விட வேறு பாக்கியம் வேண்டுமா? இதோ அடுத்ததாக அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்டம் மரியாதை, அதை தொடர்ந்து தலம்பராளி என்கிற கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். பக்தர்கள் அனைவரும் கூட ஆன்லைன் மூலமாக டிக்கெட்டுகளை பதிவு செய்து கொண்டு பகவானுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை நேரிலே அமர்ந்து கோவிந்த நாமத்தை சொல்லிக்கொண்டே சேவித்து கொண்டுள்ளார்கள். இதோ ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாய்மார்களை ஸ்ரீ பூசமேத்த ஸ்ரீனிவாச பெருமாளை சேவித்து கொண்டுள்ளோம். மூவரையும் ஒரு சேர சேவிக்கும் பாக்கியம். இதோ தலம்பராளு கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டுள்ளார் పేరుల ముత్యాల మెడ
బిరుదు మగని కంటే పెళ్లి కూతురు తిరిగోరినప్పుడే పెళ్లి కూతురు పతి పెరరేచి ఇదిగో పెళ్లి కూతురు తిరిగోరినప్పుడే పెళ్లి కూతురు పతి పెరరేచి ఇదిగో పెళ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కనుక పెదమడలి నవ్వునే పెళ్లి కూతురు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ